हाय बच्चों, आज हम आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ाएंगे। नाउ द नेम करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, we know that the meaning of electricity means electrical energy here. Current refers as the motion of electric charge और electrons। यानी इस चैप्टर में we will study about the dynamics और motion of electric charge। हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े द स्टैटिक ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़े, बट इस चैप्टर में हम लोग मोशन ऑफ चार्ज पढ़ेंगे और मोशन ऑफ चार्ज से हमें क्या क्या इवेंट होता है वो हम लोग जानेंगे। यानी जो चार्ज का दूसरा प्रॉपर्टी है कि व्हेन चार्ज इज इन मोशन बट विथ v इक्वल टू कांस्टेंट, यानी जब चार्ज का वेलोसिटी कांस्टेंट होता है और वो मोशन में होता है, चार्ज हमारा मोशन में होता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो ये प्रोड्यूस्ड करता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग इस टर्म को आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ड्यू टू करंट, जो थर्ड हमारा यूनिट है, वहां पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि हमारा जो चार्ज है वो चार्ज के मोशन से क्या होता है। और चार्ज जब भी मोशन में होता है, व्हेन चार्ज इज इन मोशन, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर इन मोशन, तब वहां करंट डेवलप होता है, यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होता है, और उसको हम लोग इन शॉर्ट में इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। नाउ electric current is what? We have different definition of electric current, but simple definition is what? The flow of electric charge per unit area through the cross section of a conductor. And or simply it is called what? Electric current. Simple you can say it is the flow of current per unit time. So we can write here I equal to Q by T. Now it is one formula for electric current. It is very simple formula. But in certain case it is given that when a number of electrons passes through a conductor, then what will be the current in 2 seconds. ऐसे केसेस के लिए हम लोग इस फॉर्मूला को चेंज कर सकते हैं। If n of charges, n of electrons are given, then from the quantization theory we can write Q equal to Ne. Is very simple. N is the number of flowing charges, E is the basic electronic charge, and from this formula will convert into like this I equal to Ne by T. Now this formula will be this. अब हम लोग इस फॉर्मूला को यूज कहां कर सकते हैं? अगर हम लोग ये देखते हैं कि सपोज दैट इट इज ए कंडक्टर, अ करंट इज फ्लोइंग, अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोइंग फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड, फॉर t इक्वल टू 2 सेकेंड, देन व्हाट विल बी द नंबर ऑफ फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स? देन फ्रॉम दिस हियर व्हाट गिवन हियर, वी वांट हियर n इक्वल टू व्हाट, सो we can use this formula I equal to Ne by T, and from this we can write here n equal to IT by E. And now putting the value of I here 2 into T, and the value of E is 1.6 into 10 to the power minus 19, and after calculation we will obtain here what? The number of electron flowing through it. Now we have another type of formula for electric current. Suppose that if electric current is variable, in different cases we have variable, then we will use the term average current, I average. Then formula will converted into
del Q बाई del T। और इस सिचुएशन के लिए जब एवरेज करंट हो, वेरिएबल करंट हो, तो हम लोग इंस्टेंटेनियस को कैसे भूल सकते हैं? और वी कैन यूज अनदर वे कि इंस्टेंटेनियस करंट इन दिस केस विल बी dq बाई dt। अब इस फॉर्मूला का भी बहुत बेहतरीन यूज है। सपोज दैट इफ इट इज गिवन इन ए कंडीशन in a conductor a current is flowing and due to the flow of charge and the function of charge is like this 3t square plus 2t plus 5, then find the electric current at t equal to 2 second. Then we will use this formula. In this formula now I will be dq, q means here 3t square plus 2t plus 5 by what? dt। और हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेरी सिंपल, अलग अलग करके 3 बाहर आएगा एंड dt स्क्वायर बाई dt प्लस 2 dt बाई dt प्लस 5 एंड वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन इज 3 into 2t minus 1 plus 2 dt by dt is 1 and this d5 by dt, the integration of the differentiation of this one will be 0 and finally we have what? 6t plus 2. Now it is given that at t equal to 2 second what will be the current? So very simple, I will be 6 into 2 plus 2 and the product will be 12 into 2 equal to 14 ampere. Now in this type of equation, this type of problem, this formula has very importance। और अब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट से रिलेटेड और भी न्यूमेरिकल को देखेंगे, ठीक है। एंड नाउ ऑल्सो वी हैव द फॉर्मूला कि इन दिस वे कि I इक्वल टू NE बाई टी। अब इसका हम थोड़ा सा दूसरी तरह से मीनिंग अगर निकाले, ठीक है ना, कि ये हमको क्या और रेफर करता है। मान लेते हैं कि एक कंडक्टर में हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 हो और दूसरे कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 40 हो, फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन 40, तो नो डाउट जो करंट यहां पर I1 और ये करंट I2 हो जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा कि देख लीजिए आप यहां पर E और टाइम विल बी सेम, मान लो t इक्वल टू 2 सेकेंड एंड हियर ऑल्सो t इक्वल टू 2 सेकेंड। सो नाउ द करंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इफ मोर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन then current will be maximum। तो here N1 is less than what? N2, so no doubt current in first conductor will be less than current in second conductor। और ये भी बताता है कि जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर पास कर रहा है तो उस कंडक्टर में हमारा रेजिस्टेंस भी कम है, यहाँ पर। दूसरी बात हम लोग यहाँ पर देखेंगे, अभी और सा टर्म हम लोग देखेंगे यहाँ। सबसे पहले हम लोग इसके SI यूनिट के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द SI यूनिट। सो ये फॉर्मूला इज व्हाट? I equal to Q by T and we know that the SI unit of Q is coulomb, C, and T is second. So also we can write coulomb per second, but SI unit of I is also given as ampere. So ampere. So also we can write here 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. In different cases, in different numericals, the general unit of current is given as I equal to I. Now here another unit, general unit, is sometimes it is given in the questions कि the current flowing through a conductor is 2 microampere, 2 milliampere, है ना। So here first of all we have to convert it into SI, so we can write here कि I equal to 2 into 10 to the power minus 6 ampere. Here also we can write 2 into 10 to the power minus 3 ampere, and general unit is generally given in the numericals. So now next what we have here कि
SI unit is ampere. Now, current is, I is a scalar quantity. Current is a scalar quantity. Why it is a scalar quantity? Experimentally, it is observed in Kirchhoff's current law. In Kirchhoff's current law, it is observed that कि हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग तीन ब्रांचेज है, हमारे तीन कंडक्टिंग वायर है, जुड़ा हुआ है, आप देखिए कि अगर इधर से हमारा 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से हमारा 3 एम्पियर करंट आ रहा है, तो ये करंट कितना आएगा? तो जब एक्सपेरिमेंटली जब एम मीटर से जब इसको मेजर किया गया तो यहां पता चला कि दिस वन इज 5 एम्पियर. व्हाट इट मीन? इट मीन्स दैट हियर आई इज व्हाट 2 प्लस 3 5 एम्पियर. यानी सिंपली ये जो करंट है, एक से अधिक करंट जो है हमारा एडिटिव प्रॉपर्टी को, सिंपल एडिटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, और ये किरचॉफ्स लॉ से भी प्रूफ है हमारा. ठीक है. सो ये हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी है. अब हम लोग देखेंगे कि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, किधर हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा. हम लोग मान लेते हैं एक सिंपल सा वायर का मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ले लेते हैं कि इट इज अ कंडक्टर हैविंग एन एरिया. नाउ दिस कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, से ऑफ पोटेंशियल V. Now say it is A and it is B, and this point will be positive and this side will be negative. Now the direction of electric field, external electric field, will be from A to B, yani positive end to negative end. Due to external electric field, the electrons of the conductor move towards the positive end of the conductor or towards the positive terminal of the battery. जब ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी आता है, तभी यहां से हमारा करंट जनरेट होता है और करंट मूव करता है, और करंट का डायरेक्शन हमारा हो जाता है फ्रॉम ए टू बी. यानी यहां से क्लियर है, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. ऑल्सो वी कैन से द डायरेक्शन ऑफ करंट इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. और हम लोग करंट के बारे में और थोड़ा मोड़ा जान सकते हैं कि और करंट कैसे कैसे जनरेट होता है. सपोज दैट इन एन एटॉमिक सिस्टम, इफ इट इज एन हाइड्रोजन एटम एंड इट इज द ऑर्बिट ऑफ दैट एटम, हियर इज डिस्टेंस इज r and electron is revolved around this nucleus with certain velocity v, तो ये क्या हमारा करंट डेवलप करेगा? नो डाउट करंट ये जनरेट करेगा. वो करंट का अमाउंट क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहां पर जो हमारा जो फ्लो ऑफ चार्ज हो रहा है इन सर्कुलर पाथ पर, तो सबसे पहले हम लोग को करंट का डेफिनेशन देखना पड़ेगा कि व्हाट इज करंट. करंट मींस होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम. तो चार्ज तो हमारा यहां पर इलेक्ट्रॉन है ही, हमें जरूरत पड़ेगा टी. अब हम लोग देखते हैं कि ये टाइम को कैसे निकालते हैं हम लोग. इफ v इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन, और स्पीड इक्वल टू क्या होता है भाई? डिस्टेंस बाय टाइम. डिस्टेंस यहां सर्कमफेरेंस से रिलेटेड है, लेंथ सर्कमफेरेंस से रिलेटेड है, तो इसका लेंथ हो जाएगा 2 पाई r बाय टाइम t. अब आप देख सकते हैं कि t इक्वल टू 2 पाई r बाय v. अब इसको हम लोग, ये जो इक्वेशन 1 है, वहां अगर हम लोग पुट करते हैं यहां पर, तो हमारा हो जाता है I इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ q वी कैन पुट हियर e, एंड इन प्लेस ऑफ टाइम वी कैन पुट हियर 2 पाई r बाय v, एंड नो डाउट हियर I विल बी ev बाय 2 पाई r. और हम लोग इस तरीके से हम लोग करंट इस तरह के सिस्टम में निकाल सकते हैं. आज हम आपको करंट का डेफिनेशन, करंट का SI यूनिट, करंट का डायमेंशन एंड करंट का डायरेक्शन आज मैंने आपको बताया है, और कुछ छोटा छोटा न्यूमेरिकल बताएंगे. मैं नेक्स्ट एपिसोड, मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उससे करंट से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, और हम लोग
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में भी बताएंगे। सो प्लीज वेट फॉर माय नेक्स्ट वीडियो एंड लाइक इट।